اتوار کو لیا نا مفتی صاحب، اتوار کو آتے ہیں، اتوار کو ملے. یہ کہ جی استاد محترم، کون کیسی آئے ہیں طبیعت ہے، جناب؟ کیسی صحت ہے مفتی صاحب؟ ابو کیسے ہیں حسن آپ؟ بھائی، خیریت سے ہیں؟ اتوار کو آپ جو ہے نا پاکستانی 2 بجے یا تو آپ لائیو فون کر لینا یا میں، صحیح ہے؟ نہیں ایسے کریں گے نا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے گا نا، شاہ صاحب بھی ہوں گے تو ہم یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر لائیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، شاہ صاحب کے چینل کے اوپر اور ختم باقی جو نبوت. میں نے آپ کو بات بولی ہے نا کہ یہ جی نفی جی ہٹا دوں گا اور اس کو فالو کرنا چھوڑ دوں گا، یہ بھی بتا دیں تاکہ شاہ صاحب پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاری کر لیں میرے سوالوں کی. لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے اوپر غور کریے گا. جی استاد محترم، کیا نام ہے ان کا؟ کون بول رہے ہیں؟ یہ بھائی کا نام ہے قاسم، مسلم کی آئی ڈی سے آئے ہیں. اچھا، تو کیا آپ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں جناب مجھ سے؟ نہیں بھائی، قاسم، ہاں جی، ہیلو. جنتی لوگوں سے کہاں مناظرہ کرتا ہوں. اچھا، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ یار ابو حسن بھائی آپ بتا دو یار، میں ذرا ڈیوٹی نہیں پہ ابو بزی سامنے ہوں. نہیں، آپ میرے سامنے ہیں، آپ بتائیے نا، کیا ان کو کیا پتہ ہے؟ آپ بتائیے. یار ابو حسن بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا میں بزی ہو جاؤں گا، تو آپ مفتی صاحب کو سمجھا دیں اور ان کو بولیں کہ اتوار کو آ جائیں، اور بتا دیں کوئی مناظرہ نہیں ہے، بس میرے کچھ سوالات. اچھا ٹھیک ہے، مرضی ہے پھر آپ کی. کوئی اور ہے مرضی تو آ جاؤ یار، میں تھوڑی دیر، میں تو اچھا یہ اس مرضی کے لیے آیا مفتی تھا تو وہ صاحب، مرضی بھاگ کے جا رہا ہے، تو اب فائدہ کیا ہوا؟ نہیں میری بھی یار میں نے طبیعت ابو خراب حسن ہے، بھائی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ میں میں بیڈ ڈیوٹی ریسٹ پر کے ہوں. اوپر ہوں. مرضی صاحب گزارا یہ ہے کہ نزلہ لگا ہے مجھے، تو میں تو ویسے آپ کو دیکھ کے آیا تھا، انٹری ماری ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں. اچھا ویسے چلو انشاءاللہ جو ہے سنڈے کو ملیں گے مفتی صاحب، صحیح ہے؟ ایک بار وہ نعرہ تو لگا دو کہ مطلب مسلم قاسم کافر جہنمی، تاکہ سکون مل جائے. نہیں ابھی بتا تو دیا آپ کو، اتنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ مرضی کہہ دیے آپ کو؟ نہیں ایک بار وہ بھی بول دو نہیں، نا، کافر مرضی و سے جہنمی. بڑی اور کون سی گالی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ چلو ملتے بھائی. ہاں، یہ اس سے بڑی تو کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں گالی نہیں ہے کوئی. اور اس کے اوپر آپ تم لوگوں کو فخر ہے، بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو ہم لوگ مرزئی ہیں، مرزے کے ماننے والے ہیں، مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور اور حمایتی ہیں. تو بات تو کرو نا ٹک کے، نہ تمہارا بابا بات کرتا ہے نہ تم لوگ ٹک کے بات کرتے ہو، دوڑنے کی کرتے ہو، پھدکتے ہیں بندروں کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. میں اس بندے کے لیے آیا ہوں، وہ بندہ ہی دوڑ گیا. چلو بندہ بات کس سے کرے بھائی؟ ہاتھی ہو گئی ہے یار، یقین مانیے. اچھا وہ ویڈیو آئی ہے میری چینل کے اوپر، آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں بھائی؟ شاہ جی معذرت چاہتا ہوں، میں اصل میں نا ویڈیو آپ کی بعد میں آئی ہے، میں ذرا تھوڑا ریسٹ کر رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تعالی. اچھا چلے ادھر ہی چلا کے سنا دیتے ہیں. میں اس بندے کو اپنا مناظرے والی سمجھ گیا پڑھتا ہوں. ذرا مائک میوٹ دوسرے لوگوں کے کر دیں، دوستوں مائک ذرا میوٹ رکھیے گا. تو وہ آپ خود ہینڈل کر لینا اگر کوئی نہیں کرتا تو. بھائی یہ یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ویڈیو آ گئی ہے، مناظرہ وڑ گیا، مفتی مبشر شاہ کی مناظرہ میں انٹری سنیں. پوچھے علی بھائی، یہ میں نا سوشل میڈیا کافی نا باہر ہوتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، یہ 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 نومبر 26 نومبر اور 26 نومبر. یہ 26 نومبر کیا ہے جناب؟ 26 نومبر کی بڑی دھوم دھام مچی ہوئی ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جناب اویس ربانی صاحب ہیں جو کہ بہت جانی مانی شخصیت ہیں سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی، اور جناب وہ لے کے پہنچ رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کو، جو کہ ایک بہت زبردست عالم دین ہے، ان کو مرزا جونیئر جیلمی صاحب کی اکیڈمی کے اندر جناب، اور وہاں جا کے کوئی مناظرہ ہونے لگا ہے. بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اور ہر طرف شور مچا ہوا ہے، اور جناب بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں. یہ کل تک تو ہو رہی تھی تیاریاں، بڑی دھوم مچی ہوئی تھی ہر طرف، اور بہت جوش اور جذبے کے اندر جو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں
जो कि नाम निहाद सहाबी हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जनाब बड़ी धूमें मचा रहे थे। और जनाब देखना तो सही, हमारे अली भाई देखना जनाब ऐसे चित करेंगे मुफ्ती साहब को और बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। लो जी, बढ़ गया मुनाजरा, बढ़ गया। आप आखिरी एक बात पूछना अगर आप माइंड ना करें तो। जी जी, पूछे पूछे। अली भाई ये मैं ना सोशल मीडिया काफी ना बाहर होते हैं तो देखते रहते हैं, ये 26 नवंबर के बारे में सवाल था, काफी ज्यादा लोग जिधर भी देख रहे हो ये हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं ये क्या सीन है? बिल्कुल, क्योंकि 26 ख्याल के अवैस रुबानी साहब लगा, क्योंकि वो एक एंकर है, बड़े एंकर है, वो सवाल था, ये इसलिए मैंने पूछा आप सवाल दिया। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ना तो मैंने उनसे टाइम लिया ना मुफ्ती साहब से लिया। तो इसको यूं ही समझें कि कोई शख्स ना लड़की वालों से टाइम ले ना लड़के वालों से, और बारात लेके पहुंच जाए और कहे जी करो, तो फिर आप समझ सकते हैं, आप तो माशाल्लाह गौरों के मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। रहा मामला संडे वाले दिन का, तो संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर छोटे से छोटा इंसान भी जो भी हमारी एकेडमी में आता है, हम उसे मना नहीं करते। एकेडमी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए रह गए। ये वाला जो तमाशा इन्होंने लगाना है या लगाना चाहते हैं, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। ना मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है, ना मुझे कोई जरूरत है रिस्पॉन्स करने की, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, ना मुफ्ती साहब से पूछा हुआ है। तो बैठना मैंने और मुफ्ती साहब ने था ना बकौल इनके, तो उसके लिए तो मैंने पहले से बताया हुआ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वीडियो बना के दे दें तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी माकूल वजह है। और ये जो कहते हैं बार बार कि ये कमजोर लोगों के साथ बैठता है, तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ये कमजोर समझते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी को ये कमजोर समझते हैं? वो तो सबसे तगड़े लोग हैं। तो मैंने उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। देखें कितना लोग झूठ बोलते हैं कि मैं इनको ललकार रहा हूं, मैं नहीं ललकारता। जब ये मुझे कहते हैं ना कि बैठो, फिर मैं ये कहता हूं, तो ये बात ही बिल्कुल अब उलट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा झूठ मेरे बारे में बोला जाता है। अभी अगले दिन पीटीए वाले भाइयों ने भी कहा कि इन्होंने हमें ये कह दिया, भाई जब तुमने मुझे झूठ बोल के कहा कि ये बिक गया है, ये हो गया वो हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने तुम्हें ये बात की, मैंने इनिशिएट नहीं किया था इसे, ठीक है। तो ये बात, जब बंदा जो शरारत करता है ना, वो पहले नंबर के ऊपर यानी मुजरिम होता है, दूसरा जवाब देने वाला तो जवाब देगा। तो मुझे तो कोई शौक नहीं, मैंने तो अपनी अकेडमी में लिख के लगाया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते, हम अवाम की अदालत में रखते हैं। अब अगर कोई शख्स चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर मुनाजरा करना चाहता है, तो वो भाई किसी मुमताज कादरी का इंतजार करे, फिर ठीक हो गया। चले फी मानिल्लाह। मुनाजरा बढ़ गया। कल शाहिद एंड बिलाल की बराड़ के ऊपर एक सवाल किसी ने कर दिया, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने, कि फिर तैयारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही। वो सुना बड़ा जनाब मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब लंगोटे कस के तशरीफ ला रहे हैं आपकी अकेडमी में, तो आप मुनाजरा करेंगे कि नहीं करेंगे? लो जी, हवा टाइट हो गई, फौरी तौर पे हवा टाइट। इंजीनियर साहब नहीं जी, मेरा तो उस मुनाजरे से कोई तल्लुक वास्ते को नहीं है, ये तो उन्होंने मुझसे टाइम ही नहीं दिया। ये तो वैसी बात हुई कि जैसे ही वो जनाब कोई एक लड़के और लड़की की शादी है, ना लड़के वालों को पता ना लड़की वालों को पता। अच्छा, ये तो कहानी आपने इंजीनियर साहब सुना दी है, लेकिन आपका ताल्लुक लड़के वालों से है या लड़की वालों से, ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। वो मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब लगता है वो लड़के वाले हैं, तो आप लड़की वाले हैं। अच्छा जी, आगे से जनाब इन्होंने एक और जुमला कसा है, फरमाते हैं कि देखो जी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के छोटे से छोटा कोई पाकिस्तानी भी मेरी अकेडमी के अंदर संडे के दिन आए तो हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। सही हो गया। और मैंने तो अकेडमी में लिख के भी लगाया हुआ है कि जनाब हम मुनाजरे नहीं करते, मुनाजरे नहीं करते। ठीक हो गया इंजीनियर साहब, ठीक हो गया, बेहतर हो गया जनाब। अभी ऐसा कर लेते हैं, एक हम भी पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है जी। और ये आपकी पार्टी मेरे साथ होगी, और ऐसा कर लेते हैं कि आपकी हर चीज हमें मंजूर है, हर चीज कबूल है। आप फरमाते हैं जनाब, नंबर 1, अकेडमी का दरवाजा हर एक के लिए खुला है, वहां आके आप सिमात कर सकते हैं, वहां पे आके आप एक पर्ची मुझे दे सकते हैं, और पर्ची के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसका मैं जवाब दूंगा।
ये आप लोगों का एक तरीकाकार है। अभी ये 26 मई का जो कटी कटा ये निकल ले, तो इसके बाद हम पहले देख लेना कि होता क्या है। उसके बाद आजिज मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी इंशाल्लाह ऐलान करेगा कि कौन से संडे को मैं बनफ्से नफीस खुद पहुंचूंगा, आम सा एक रुकन बन के। कोई मेरे पास कोई जनाब असला नहीं होगा, कोई वो छुरियां टोके नहीं होंगे, कोई बम बरूद नहीं होगा, नहिता बिल्कुल। पास शायद मोबाइल हो या थोड़े से पैसे हो, उसकी इजाजत दे दें आप मेहरबानी कि वो मैं लेके आ सकूं। और ये जो लिबास है सादा सा वो पहना हुआ होगा। एकेडमी के दिन मैं पहुंचता हूं और मेरे कुछ सवालात होंगे। मुनाजरा तो आप करते नहीं ना, मुनाजरा तो आपने फरमा दिया जनाब, बढ़ गया मुनाजरा, बढ़ गया। छोड़ो जी मुनाजरों को छोड़ो, अब सवाल चलेंगे, सवाल जवाब चलेंगे। सवाल हमारे होंगे, जवाब आप देंगे, साइल हम होंगे, मुजीब आप होंगे। तो इस चीज की इजाजत दे दें। क्या इस चीज की भी इजाजत नहीं है तो वो बता दें। ये ना हो कि मैं वहां पहुंचू, वहां पे वो पुलिस वाले मेरा इंतजार कर रहे हों और आगे से वो मुझे पकड़ लें, ऐसे नहिते बंदे को। तो अगर आप इजाजत दें, आप बड़ी बार गए जनाब, तो इजाजत दें तो क्या हम साइल के तौर पे पहुंच सकते हैं कि नहीं? मुफ्ती मुबशर शाह साइल के तौर पे आपके पास आ सकता है कि नहीं, ये जरा बता दीजिएगा। और जनाब एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज का इंकशाफ यहाँ पे किया है। फरमाते हैं जनाब कि चिश्ती रसूलुल्लाह पर मुनाजरा करने के लिए मुमताज कादरी का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सही है। तो आइंदा से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, जहां पे आजिज जा रहा है और दिन भर बैठ के मुकालमात करता है, और इंजीनियर मिर्जा जेलमी साहब के स्टूडेंट और नाम निहाद सहाबी जो हैं वो आते हैं और कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो। ये सारे कान खोल के सुन लो भाई, आइंदा से मुमताज कादरी का इंतजार करो। ये सवाल तुम हम लोगों से नहीं कर सकते, आइंदा से हम लोगों से सवाल नहीं करना। तुम्हारे बाबा जी ने फरमा दिया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह पर मुनाजरा करने के लिए जनाब मुमताज कादरी का इंतजार करना पड़ेगा। और जो नलायक किस्म के स्टूडेंट हैं वो बार बार अब इस चीज को रिपीट करें, चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुनाजरा करो, चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुनाजरा करो, तो वो फिर ये स्टेटमेंट सुन ली है आपने कि जनाब मुमताज कादरी का इंतजार करना पड़ेगा इस मुनाजरे के लिए। चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू के ऊपर मुनाजरा करने के लिए। तो और पर्चियां साथ होंगी, पर्चियां जिसके ऊपर मैंने सवाल लिख के देना है। तो इस चीज की इजाजत दे दें मुझे। तो अब मुझे रिप्लाई का इंतजार रहेगा इंजीनियर साहब कि आप क्या करते हैं, और आया इस पर्ची की भी इजाजत है कि नहीं, सवाल की भी इजाजत है कि नहीं। अब ये ना हो कि कल आप कोई बोर्ड एक नया लिख के लगा दें कि पर्ची लिखने की भी इजाजत नहीं है सवाल करने की भी इजाजत नहीं है। अभी बड़े बोर्ड हमने आपसे लिखवाने हैं, हमें वो बोर्डों का इंतजार है। भारी भारी बोर्ड ऐसा ऐसा लगेंगे ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, रब रखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। जी साहिबान कदरदान, हाँ जी सुन लिया आप लोगों ने। जबरदस्त हो गया। तो जी फिर हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है जी, शाह जी मैं भी आपके साथ हूं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी। नहीं वो दो बंदे वेख के भावें उंज ही कुट्टन ना शुरू हो जान नाले अच्छा एक और शर्त भी है, एक और भी शर्त है मिर्जा साहब जी ने मुनाजरा करना ना बाय एयर ना आवे, बाय रोड आवे। ਅਸੀਂ ਬਾय रोड ही आवांगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਐ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ। ਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ कि यहाँ पे पर्ची देने की भी इजाजत नहीं है
सवाल करने की भी इजाजत नहीं है। आओ, आओ। उस्ताद काबली पठान ना ले जाए। आओ। ये मुस्लिम 360 भाई आए हैं, ये मुझे इनके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, इनसे बात करते हैं। जी मुस्लिम साहब, जी मुस्लिम साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी लाख लानते कादियानी मिर्ज़ा दज्जाल पे और छोटे मिर्ज़े पे। अल्लाह अहले सुन्नत को, अहले सुन्नत हनाफ बरेलवी को फातिह करार दे। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो बड़े मरज़ई हैं ना, जो कादियान के कुत्ते, इनकी तरफ से एक ना चूहा छोड़ा जा रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, कि अहादीस में जो उनकी निशानियां बयान हुई हैं, एक हदीस में कहा गया है कि उनके बाल घुंघराले थे, एक हदीस में कहा गया उनके बाल लंबे थे, सीधे थे, सीधे, और इसी तरह सीने से मुतल्लक कि एक जगह पे कुशादा और एक जगह पे गालबन छोटा, कोई इस किस्म के जो, हाँ, तो इस तरह के ना अहादीस में दो मुख्तलिफ निशानियां बताई जा रही हैं बड़े कादियानियों की तरफ से। तो वो कह रहे हैं, इस चीज़ से वो ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि वो जो ईसा आसमान पर गए देखे सरकार ने वो और हैं, जो ईसा ज़मीन पर आने वाले हैं वो और हैं। तो मैं चाहूँगा इस बारे में आप कोई तफसीली और मुदल्लल जवाब इनायत फरमा दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मुदल्लल तफसीली जवाब तो हमने बड़ी दफ़ा दिए हुए हैं, और ये मुदल्लल जवाबात लेने के लिए और ये सवालात करने के लिए कादियानियों को खुद मैदान में हमारे मद्दे मुकाबला आना पड़ेगा। तो वो तो चलो ईसा अलैहिस्सलाम के बाल गुंगरियाले थे या सीधे थे या सुर्खी माइल थे, वो उससे मिर्जे कादियानी का क्या तल्लुक हुआ? तुम अपने मिर्जे के बारे में बताओ। वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि गंजपन का मर्ज होगा, बाल जड़ का मर्ज होगा मसीह को? है मिर्जे कादियानी को वो बीच में से गंजा था, पता है आप लोगों को? उसको बाल जड़ का मर्ज था। हैं जी, तो ये कहाँ पे अलामत लिखी हुई है जी? वो चलो ईसा अलैहिस्सलाम की तो वो बाद में देखेंगे ना, कहानी बाद में देखते हैं। कोई हमारे भी तो सवाल है, वो हमारे भी तो बताए ना। हमारे सवाल कहाँ पे गए भाई? सवाल सिर्फ कादियानियों ने करने हैं या मर्दइयों ने करने हैं? मुसलमानों को कोई इजाजत नहीं? तो ऐसा नहीं। जी जी खेल हम खेल किसी एक वंड के साथ खेलेंगे, ऐसे नहीं कि हर सवाल को भी सुनेंगे और उसके पीछे जवाब भी देने की शुरू कर देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। तो सवाल हम किस हिसाब से सुनेंगे भी अगले का और देखेंगे कि मामलात क्या है, तो उसके ऊपर फिर हम जवाब देंगे। सही सही, ये मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी और कोई नीचे मिर्जा जिल्मी या मिर्जा सीनियर का कोई फॉलोअर है तो कॉल डाले भाई, नीचे बैठे। अच्छा, ये जो आपने नाम लिखा हुआ है मुस्लिम 360, इसका मतलब क्या होता है? असल में मुफ्ती साहब मसला ये है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और ये ना बाहर से एक दोस्त ने ना बना के आईडी मुझे भेजी है, तो उसी ने खुद ही बनाई है, मुझे यहाँ पर लॉगिन करवाई है। मुझे ये तो पंगे का भी नहीं पता है, बस लाइव आने के लिए। बाकी मैंने उससे अच्छा, कहा वो फिर ऐसा होगा कि किसी वो जो दोस्त है ना आपका, वो फिर शायद यहूदी हो, यहूदी कोई दोस्त होगा, क्योंकि ये असल में 360 ऐप है, वो यहूदियों की ऐप है। तो असल में मुसलमानों के अंदर घुसे हुए हैं ना, तो उन्होंने बीच में कुरान हदीस इस तरह की किताबें रखी हैं, लेकिन है वो यहूदियों ने बनाई है। तो वो ये जो है ना, ये वाला तबका वो लिखता है ये मुस्लिम 360, तो मुस्लिम ओनली, तो मुस्लिम जस्ट मुस्लिम, तो उन्होंने बड़ी साथ पूछलें लगाई हुई हैं मुस्लिम के साथ। जी जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा
कि मैं आहले सुन्नत अहनाफ बरेली शरीफ के टुकड़ों पे पलने वाला बंदा हूँ। तो मेरे लिए उसने ये बना के दे दी। मैंने उसे कहा भी था कि इसका ना नाम चेंज कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो एक इस्लाम 360 ऐप है और मोस्टली मिर्ज़ा जो जूनियर है उसके फॉलोअर्स उसे यूज़ करते हैं। वो दोस्त भी अहले सुन्नत है, लेकिन कुछ अर्सा कबल वो मिर्ज़ा की कई मामलात में ना कर रहा था हमारे, तो उससे लाइव गुफ्तगू की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस अपने असल अक़ीदे की तरफ पलट आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये इंशाल्लाह चेंज करवाऊंगा, मुझे इतने पंगों का पता नहीं है, वरना अब तक तो मैंने इसे मैं कोशिश करूंगा खुद से कुछ हो जाए, वरना उसे ही कहूँगा इंशाल्लाह। अपनी प्रोफाइल पे अभी जाइए और वहां नीचे ही आपको एडिट का नजर आ जाएगा, एडिट प्रोफाइल नेम, तो वहां पे क्लिक करें और नेम चेंज कर लें। वो कोई इतना कोई जनाब कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये ऐप इस्तेमाल मत करें, इसके अंदर बहुत सी अगलात है और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये इस्लाम दुश्मन अनासर की बनाई हुई है और ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इससे बचें जनाब। जी जी जरूर जरूर, आपका हुक्म साहब, अहले इल्म के बगैर तशरीफ ले नहीं सकते, जैसा आपका। अच्छा शाह जी, आपकी तरफ से ना आवाज़ जब रिटर्न आती है तो वो जी। कभी शोर के साथ होते हैं। आबिद भाई आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यही है कि ये जो मिर्जा आप तो नहीं के वॉइस डबल हो रही। ये जो मिर्जा के फॉलोअर है, इनको इनके आबाओ-जाद की जायदाद में कोई हिस्सा मिलेगा? पता नहीं कि अल्लाह ही जानता है, हिस्से भी इनके हैं तो दें ना दें। नहीं, अगर तो वालिदैन मुशरक थे तो फिर अभी जो नए मुसलमान हुए उसका हक बनता है। वैसे ये सवाल था मेरा। और बाकी वही 4 गवाह वाला, अगर आप जाएं मिर्ज़ा साहब के पास तो उनसे ये थोड़ी सी मेरी तरफ से भी गुजारिश करें कि वो जो 4 निकाह खान गवाह थे वो कौन कौन से आपके जो वालिदैन के निकाह में थे? नहीं, वो तो जब मैं अगर भूल के या फर्ज महाल अगर चला गया, अव्वल तो यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं ना, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल कि मैं वहां पे मुझे एंट्री की इजाजत मिले, क्योंकि पहले मैं ट्राई करके दे चुका हूं। मैं तो डायरेक्ट इसके घर में चला गया था ना, एकेडमी तो नहीं मैं कभी गया, घर में चला गया ना। घर में नहीं, मुझे वो बाहर तक नहीं आया था, उसने अपनी जोजा को भेज दिया बाहर। तो एकेडमी में तो सुना है कि वो बड़ा जनाब किसी मौलवी को एंट्री है ही नहीं, ये नहीं कि मैं किसी भी मौलवी को एंट्री नहीं। तो देखते हैं क्या बनता है। माजरत चाहता हूँ शाह जी, माजरत चाहता हूँ कि बात काट रहा हूँ। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने एक वीडियो अपलोड की है। अच्छा, हूं तो नहीं वॉइस डबल हो रही? नहीं शाह जी, बिल्कुल परफेक्ट आ रही हूँ। अच्छा ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ? ਇੰਜ ਦੀ ਯਾਰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਮੂਦ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। जी उस्ताद, मैं गल पूछी तुहाडे कोलों कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर ने ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਇਹ ਉਮਤੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ।
हाँ जी, खुदा बना के कहता है पिया नहीं, वो खुदा और मखलूक के फर्क के साथ चलो। ये की चीज है जी, ये की हुंदी है खुदा और मखलूक का फर्क? ये फर्क कित्थों कड्ढिया जे जी? ये की हुंदा है खुदा ते मखलूक दा फर्क? इंज ते कादियानी भी फिर मिर्जे दियां किताबां च लिखिआ कि मुहम्मद है या वो खुदा भी लिखे है, ते अग्गों आ जवाब वो है ही देणगे खुदा और मखलूक दा फर्क दे नाल वे है मिर्जा कादियानी खुदा। वो एवं ही बस। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੇਬੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਫਲੇ ਨੂਰੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਿਫਲੇ ਨੂਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਾ ਤਿਫਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨੂਰੀ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। और मिर्जा कादियानी यूज करता है अंता मिन्नी बी मंजिलाती उलादी बी मंजिलाती वलादी इस्मा वालादी, वो इंज दे लफ्ज़ यूज करता है। तो मतलब थोड़े थोड़े फर्क दे नाल ना इन्हां दियां इस्लाहात बदलदियां ने, क्योंकि अगर ओही इस्लाहात इस्तेमाल करनगे तो कोई भी कह सकदा सी गोबर शाही नूं कि तूं ते कादियानी है। इन्हां ने फिर ना इस्लाहात इन्हां ने क्या हुण असीं अपनी वजह करांगे ताकि ना रवे बांस ना वजे बांसरी। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੁਕਾਨ ਉਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲਾਹਨਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੂ ਜਨਾਬ, ਉਦੋਂ ਇਜਤਮਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਉਹੀ, ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬਨ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇੱਕ ਰਹਿਮੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਰਾਮੇ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी मुफ्ती साहब, सवाल तो अभी फ़िलहाल नहीं, वो अभी सलाम करने का फ़ायदा कोई नहीं। वो सवाल अच्छी तरह यानी क्लियर करके फिर इंशाल्लाह आपसे करूँगा सवाल।
सवाल बड़े कल पैदा हुए थे तो अभी ज़हन में नहीं है। वो गार्डियनों के साथ गया था करने पे, तो उनको मैंने कहा था कि भाई अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप कहते कि जो बंदा एक बार चला गया दोबारा नहीं आ सकता, तो आप कहते हैं आपको गुलाम अहमद जो, तो फिर आप कहते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये आप दोबारा क्यों कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर उनसे बात? वो दाएं बाएं जाते नहीं ना, फिर मैंने नहीं वो ही ना, तो आप वो ही ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने आप लोगों को लगाया, आप लग पड़ते हैं। ये तो नहीं है, कोई तुक तो नहीं बनता ये। उनके जो उनसे मिर्जे है उसके तो बड़े बड़े चीजें मैं उनको पेश भी कि भाई ये खुदाई का दावा कर वो रहा ही है, ना यहाँ पे भाई, फलाना कर उन्होंने रहा तो है। मिर्जे की जात और किरदार के ऊपर जब बात नहीं करनी तो आप छोड़ दें। आप वो अपनी बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं तो आप भी सारे लग जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो वही बात हुई कि फिर आप लोगों ने कादियानियों की बात मान ली, वो जैसा चाह रहे थे वो वैसा हमने करना फिर शुरू कर दिया। सही सही माशाल्लाह। उनको एक और हवाला भी देना था, वो तो कहते कि भाई हम इस चीज को मानते कि भाई उनको ना ही कत्ल किया गया ना ही सलीब पे चढ़ाया गया। उनके अपने मिर्जा साहब ओ कहते कि भाई, उनको हजरत कत्ल किया ईसा गया और अलैहिस्सलाम जनाब से मिर्जे कादियानी का ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक वास्ता को बताए ना। बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं है। बिल फर्ज वो आपको मुनाजरे में शिकस्त दे देते हैं और साबित कर देते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, तो आगे से मिर्जा कादियानी जो है ना वो सच्चा कैसे साबित होगा? वो तो शराबी है, वो वैसे ही शराबी रहेगा। वो जानी है तो जानी रहेगा। वो चोर ठग था तो वैसे का वैसे ही रहना है। वो तो अब मर गए है ना, अब उसको कैसे सच्चा साबित करेंगे? इस पे तो पहले करता था, वैसे कल परसों उसने इस पे की थी, मैंने सवाल उनसे ये उठाया, वो एक बंदे को कह रहा था कि फलाना था डिपकाना ऐसे है, और झाड़ियों के बारे में पता नहीं इतनी गंदी बातें करते, फिर हमें कहते तुम ऐसे बातें करते तो फलाने बातें करते हो। तो उसने सवाल क्या किया, वो झाड़ियों के पीछे लगा कि भाई आपकी जैसे बीवी है वो आपकी झाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पे उसको ले गया था वो। तो उस पे बस फिर यही मैंने बात उसको है कि हमारे ना दोस्त जो है ना अनट्रेंड होते हैं और तरबियत नहीं होती, और बस शौक होता है कादियानियों के साथ मुनाजरे करने का, लेकिन वो ना बाद में काम खराब हो जाता है। इनको तो ऐसे क्या बंदा की बात करते नहीं है, हमने कहा चलो इस पे को खींच के रख दिया उनको। खींचना क्या है? खींचना तो तब था कि जब आप मिर्जे कादियानी की शराब नोशी ज़नाकारी के ऊपर बात करते तो वो मजा भी आता। वो हाँ, इस पे कहते हैं तो ना क्या साथ दिया कहते ना। जी फरमाए मुफ्ती साहब। तो अगर उसके ऊपर दो बोल भी आप बोल देते तो वो बस 100 सुनार की एक लोहार दी काफी थी। वहां 1 मिनट भी आप टिकते और ये वाला सवाल उजागर करते, बस काफी था। वो आप जितनी देर भी फिर गुफ्तगू करते रहे वो तो फिर काम खराब रहा ना, नीचे सुनने देखने वालों को तासुर क्या गया होगा। तो अगर इस हवाले से बात करें तो इसका हवाला कहाँ से उनको दें? किस चीज का हवाला? ये कि वो शराबी था, कबाबी था, ये ऐसे। वो मेरी इतनी वीडियोज है, अब तो मैं लेटा हूँ बिस्तरे पर हूँ, तो मेरी वीडियोज आप मेरे चैनल पे जाके देख लें सब। मैं हवालों के बगैर तो कभी बात की नहीं है। अच्छा, आपका चैनल जान सकता हूँ? सुभान अल्लाह। जी रजवी बादशाह भाई, शाह साहब की 2 कुतुब हैं, एक तो उनके नाम दर्ज करें अपने पास, नाम नोट करें। जी जी एक मिनट। एक शाह साहब की किताब है कादियानी कलमा, कादियानी कलमा, मैं लिख लूँ। एक दूसरी किताब है मिर्जा कादियानी के शोरा आफाक 200 झूठ। शोरा आफाक 200 झूठ। एक मिनट प्यारे भाई, मैं पेंसिल। और भी चंद एक कुतुब जो है वो मौजूद है नेट के ऊपर। आप मुताला नहीं ना करेंगे जब तक, तो आप मुनाजरा करने के लिए जाएंगे ना तो आप उल्टा मुसलमानों के लिए जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। मुताला बहुत जरूरी है मेरा भाई, इसके बगैर तो मुनाजरा, उसको मुनाजरा कहते ही नहीं उसे मुनाजरा, मैं जब तक आपके पास इल्म नहीं है ना। जरूर हूँ जी जी, जरूरत ही नहीं है उनके पास जाने की। उस दिन गया था ना तो उसने बहस की थी, फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक हो गया, आपने कह दिया मुझे 95। अच्छा ये एक मिनट रुके भाई। ये एक मुरब्बी साहब आए हैं, मंसूर काहलू साहब, कहते हैं वो नबी पाक की बात करते हैं, कुरान करीम की बात करते हैं, हदीस पर बात करते हैं। चलें ठीक है, कौन से नबी पाक की बात करते हैं? नबी पाक तो वो आजिज की किताब है कादियानी कलमा, उसके अंदर मुफस्सल मैंने तुम लोगों की किताबों के असल स्कैन भी लगाए हैं।
तुम लोग तो नबी पाक मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी को मानते हो कि वो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिर्ज़ा कादियानी खंजीर है, हैं? कौन से नबी पाक की बात करते हो? कुरान के बारे में खुद कलमातुल फजल के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का बेटा जो है ना वो लिखता है कि कुरान दुनिया से उठ गए। जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजल हुआ था वो तो दुनिया से उठ गया है। अब ये मिर्ज़ा खंजीर को मोहम्मद बना के दोबारा दुनिया में अल्लाह ने भेजा है और इसके ऊपर दोबारा कुरान नाजल की है। कौन सी हदीस की बात करते हो? हदीस की बाते करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी तो कहते हैं मैं हदीसों को मानता ही नहीं, मैं हदीसों को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकता हूँ। कौन सी हदीस की बात करते हो भाई? आओ ना सामने कॉल करो। यब 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 लगाई होती है तुम लोगों ने, लोगों को वर्गलाते हो, झूठ बोलते हो। हम ये सब झूठ है, हम सुनते आ रहे हैं 130 साल से। सही है, मिर्जा तो कज़ाब है, कज़ाब ही रहेगा, वो शराबी है, शराबी रहेगा। 130 साल से वो शराबी है। आज तक तुम लोगों ने उसको जो है ना शराबी के बगैर साबित नहीं किया। वो जानी है तो जानी ही रहना है उसने। 130 साल हो गए, शर्म से डुबो मरो कि कम से कम उसको तुम शरीफ इंसान ही साबित कर दो। वो तो कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो तो कहता है मैं गंडोया हूँ। वो तो कहता है मैं किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ, मैं तो इंसान का बच्चा ही नहीं हूँ, मैं आदमजाद नहीं हूँ। वो पहले उसको इंसान साबित करो। इधर आओ मर्दैयो, निकलो बाहर। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं आदमजाद हूं ही नहीं, इंसान का बच्चा हूं ही नहीं। तुम कैसे साबित कर लोगे उसको इंसान? पहले इंसान का बच्चा उसको साबित कर लो। जब इंसान का बच्चा उसको साबित कर लोगे उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे कि मिर्जे को एक शरीफ इंसान साबित करो। स्टेप बाय स्टेप चलेगा काम। जब मिर्जा कादियानी की ये शराब नोशी, ज़नाकारी, हरामकारी, लवाततबाजी, रंडीबाजी से जान छुट जाए तुम्हारी, तो फिर उसके बाद फिर बात करेंगे कि आओ भाई मिर्जा कादियानी को मुसलमान साबित करो। जब फिर अगले स्टेप, तीसरे स्टेप में जाके मुसलमान साबित कर लो, फिर उसके बाद अगला चौथा स्टेप होना है कि हाँ भाई मिर्जे के दावे इजाद किए हैं, आओ उसके ऊपर बात करो। ये तो चौथे स्टेप की बातें हैं। तुम्हें इतनी जल्दी पड़ गई है मिर्जे के दावाजात के ऊपर बात करने की? थ्रू प्रॉपर चैनल चलो हमारे साथ, निकलो बाहर। इंसान के बच्चे बन ही नहीं रहे तुम मर्जियो। इस तरह की गंदी जुबान वालों से हम बात नहीं करते। बिल्कुल मिर्जे से तो करते हो ना। मैंने तो तुमको नहीं कहा कुत्ती का बच्चा। मिर्जा तो कहता था कि ये तमाम अहमदी कुत्ती के बच्चे हैं। उठा के देखो मलफूजात जिल्द अव्वल सफा 97 में, वो कहता है तमाम कादियानी अहमदी जो है कुत्ती के बच्चे हैं। हाँ, कुत्ती का बच्चा तुम्हें कहें तो फिर ये सही जुबान है ना, फिर तो करोगे ना बात हमसे। आ जाओ। या रंडी का बच्चा कह लेता हूं, ये अच्छी वाली जुबान है जो मिर्जा कादियानी हर अपने ना मानने वाले को कहता था कि ये रंडी का बच्चा है। दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। ये कह लूं तुम्हें फिर से, ये अच्छी जुबान है, ये फिर बात करोगे? आओ किसी जगह टिक के बात तो करो ना। सादे मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ तो सलाम अर्ज करना आया था, मैं काम ते हां ते वालेकुम सलाम। चलो अल्लाह हाफिज। यार शायद मैं भी चल रही, मैं उंज ही आया था जे एक मरजई वास्ते, मैनू ना नज़ला लगा है ते आवाज़ भी सही हो, तुहानू पता है केरा वगैरह डिगदा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मैं चीज़ अर्ज करांगा कि राती बुगदादी भाजी ने ईमान ताज़ा कर छड़िया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ज़ियारतां करवा के, ते मैं सोचा कि जुम्मे दी रात जिहड़ी है ना वो सिर्फ महफिल नात होए करेगी। सुभान अल्लाह, करो जी करो, बिल्कुल जी करो। तो इंशाल्लाह राती मेरा दिल नहीं सी करता लाइव आन ते, लेकिन अगलियां करवा ली सरकारां ने, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो मैं एक तो तुहाडी इजाजत चाहना कि जुम्मे रात दी जड़ी है ना वो सिर्फ तो सिर्फ कोई पलीत इंसान का जिक्र नहीं होगा मेरी लाइफ पे, जस्ट जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू बुगदादी भाजी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।
ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਟੀਜੇ ਮੁਬੀਨ ਹਾਂ ਰੱਬੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਬੀਨ ਟੀਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਏ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਐਥੀਇਸਟ ਇਹ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਹਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਬਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਜਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ। ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਨਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਨਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਕਾਫਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ। یہ جی سارا سر، ایمان لانے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے جو ہم کہتے آ رہے ہیں شروع سے کہ یہ بندہ جو ہے پس پردہ یہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے اور یہ اپنے آپ کو نبی ہی سمجھتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ہم جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ باتیں سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے بیانات سے جو ہے وہ اس کا جو عقیدہ ہے یا اس کا جو کہتے ہیں کہ جو خباثت ہے نا، وہ اس کے بیانات سے سامنے آتی ہے مسلمانوں کے۔ ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 31 ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਹਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। جی جی میں شاہ صاحب نو نا میں سینڈ کر دیں گا، بلکہ میں نا مشاورت دی پین سینڈ کر دیں گا نا، اتوں پھر شاہ صاحب لے لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کچھ کتابوں کا ذکر فرما رہے تھے مفتی صاحب کے؟ کتابیں لکھ لیں، نام قادیانی کلمہ، قادیانی قادیانی کلمہ۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے اسو والعقاب، تو اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے، اسی کے اوپر تخریج کی ہے اور تصحیح کی ہے۔ اس کا نام رکھے قادیانی کذاب۔ تو یہ گوگل پہ مل جائے گی پی ڈی ایف؟ جی جی، ایک اور لکھ لیں جی فرمائیں۔ مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث۔ غلام انگریز ایک کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ افاق 200 جھوٹ۔ ابھی معراج شریف آنے والی ہے تو اس کتاب کی بھی ضرورت پڑے گی۔ نام ہے الاسرا والمعراج، یعنی جسمانی معراج۔ جی جی جی، یہ اس کی ضرورت ہے مجھے، بالکل ابھی ذہن میں آیا، اسی کی ضرورت ہے زیادہ۔ مزید عاجز کی غیر مطبوعہ بہت سی کتابیں ہیں جو جن کے نام مجھے فی البدیہہ یاد بھی نہیں ہے، تو وہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، تو آپ لکھیں نا کوئی سرچ کر کے
मुफ्ती मुबशर शाह बुक्स या किताबें, तो वो आपको फिर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। अल इसरा वल मिस्र है, और शाह जी अल असरा वल मेराज। अल असरा वल मेराज। शाह जी इन्हें खत्म वो फोरम के बारे में बता दीजिएगा, जो अपना पेज है ना हमारा। बताओ ना यार, मेरे को बोलिया नहीं जाता, नजला लगा ही। जी हाजिर शाह जी। अच्छा रिजवी बादशाह भाई और बाकी भी साथी जो मुसलमान बैठे हैं ना, आपको किसी भी मौजू के ऊपर जो है ना वो आपको दलाइल चाहिए ना, तो शाह साहब का एक पेज है, उसका नाम है ख़त्म नबूवत फोरम। वो आप जो है वो सर्च करेंगे ना, वो आ जाएगा आपके पास, उसको आप सेव कर पेज लें। नहीं होए किसी भी तू, जी शाह जी। ओ पेज नहीं हो, जी। भेजू ਭਾ ਭੇਜਾ शाह जी फोरम है फोरम। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ जी शाह जी। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ Search ਪਿਓ engine है। ਹੁੰਦਾ। सर्च इंजन है वो, यानी उस वेबसाइट के अंदर जितना भी मवाद मौजूद है ना, वो आप एक लफ्ज़ लिखेंगे ना तो वो आपके पास तमाम हवाला जात जो है ना वो आ जाएंगे, डिबेट्स आ जाएंगी, किताबों के हवाले आ जाएंगे, स्कैन पेज आ जाएंगे, जिस यानी कि जो डिबेट्स कादियानियों के साथ हुई हैं, जिन मौजू डिबेट्स हुई हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगी। और जितनी ये झूठी हदीसें बयान करते हैं मिर्ज़ा को सच्चा साबित करने के लिए, वो तमाम हदीसों की तखरीज भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत कुछ है उसके अंदर, मवाद बहुत ज़्यादा मवाद है। ठीक हो गया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बेहतर हो गया इंतहाई ज़्यादा। आज भी कोई कादियानी या कोई मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का मानने वाला बैठा है तो ये ज़रा हमें बताएं कि ये मिर्ज़ा ने जो अपने सहाबी बनाए हैं, ये ज़रा इनके बारे में ज़रा बताएं, ये जो है सहाबी किस तरह से इसने बनाए हैं अपने, कोई ऊपर कॉल पे तो आए यार। ये जो काशिफ ने लगाया हुआ है ना लोगो, और नाम भी इसने ख़त्म नबूवत गालबन फोरम ही लिखा हुआ है। हाँ, ख़त्म नबूवत फोरम, ये उसी फोरम का लोगो है, उसी फोरम का ये लोगो है। कादियानियत के बारे में अगर आपने जानना है, उसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, जितने दोस्त नीचे बैठे हैं ना, अपनी जितना भी आप वक्त नेट के ऊपर देते हैं ना, उसमें से 1 घंटा या 1.5 घंटा अपना जो है ना वो लाजमी मुताले को दिया करें। नहीं, मुताले के बगैर तो नहीं ना कुछ आ सकता। लोगों ने बस वैसे ही सुना ही हुआ है जी कादियानी काफर। अब वजह कुफर नहीं पता कि असल मामलात हैं क्या, वो पता नहीं है। और हमारे माशाल्लाह मौलवी साहिबान ने भी सिर्फ नारे ही लगवाए हैं, लाओ नारा मिर्दे ते लानत बेशुमार, चलो जी सारे कहते लानत बेशुमार। पता किसी को भी नहीं है कि लानत वो केड़ी वजह तो, वो वजह ना ही तो मौलवी साहब नूं पता हुंदी है ते ना ही उन्हां दे सुनन वालियां नूं। रोले विच ऐ पे ने ते ओही ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ। ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ। क्योंकि मौजू ऐसा खुश्क या मौजू है कि मौलवी की किसी ने सुननी को नहीं। मौलवी अगर है कादियानियत बयान करनी शुरू करे मिंबर से, लोगों ने उंजी उन्होंने मौलवी नहीं मनना, क्योंकि मौजू ही बड़ा खुश्क जे है ते तां वास्ते मौलवी बयान नहीं करते। उन्हें अपनी मस्जिद नूं रखना है किसी तरीके, बस इंज ही चल रहे काम जी। उस्ताद मोहतरम ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹੋ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਹਿਮਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਦਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੋ ਫਿਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਿਵਾਏ ਚੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਲਿਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਲਮੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੀਨਾ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ੇਜ਼ਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਜਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਸਮ ਬਈ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 8-10 ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸਹਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗਾਟੇ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟ ਵੇ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੋ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਸਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕਿਆਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਜੀ ਝੂਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਸਵਦਨ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਆਦਤ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਗਜ਼ਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ।